میں اس وقت کریم گنج محلے میں ہوں. گیا شہر کا یہ قدیم محلہ ہے اور اس محلے میں کچھ نوجوانوں نے ہیلپ سوسائٹی نام سے ایک مرکز قائم کیا ہے جہاں گیا شہر کے نامی و گرامی ڈاکٹروں کی خدمات لی جا رہی ہے. اس ہیلپ سوسائٹی میں غریبوں کی مدد کی جاتی ہے، انہیں علاج کے لیے مدد کی جاتی ہے اور اس سوسائٹی کے ذریعہ فری میں دوائیں دی جاتی ہیں. یہ سوسائٹی 2019 میں قائم ہوئی اور اس میں زیادہ ایکٹیو غلام حیدر صاحب ہیں اور جاوید خان صاحب ہیں جو اپنی ملازمت سے سارے سبکدوش ہو چکے ہیں اور سماجی خدمات میں لگے ہوئے ہیں. آج صورتحال یہ ہے کہ ہم اپنے ہر محلے میں ایک ہیلپ سوسائٹی قائم کریں تاکہ ہمیں طبی سہولیات فراہم ہو سکے اور ہم ادھر ادھر بھٹکنے سے بچ جائیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس طرح کی سوسائٹی نہ صرف قائم کرے بلکہ دامے درمے سکھنے اس کی مدد بھی کرے. میں اس وقت اس سینٹر میں ہوں اور مریضوں کا ایک لاتعداد مریضوں کی وہ ہے اور یہ 2019 میں قائم ہوا. آج ملک کی سیاسی سماجی صورتحال جو ہے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اگر مسلم معاشرہ جاگتا نہیں ہے اور ہم اس طرح کے سماجی کام کرنے والوں کے ہاتھ سے ہاتھ ملا کر ایک طاقت نہیں بنتے ہیں تو ہم کب جاگیں گے؟ اب جاگنے کا وقت آ گیا ہے اور ہمیں متحد ہونے کا وقت آ گیا ہے اور اس میں جاوید خان صاحب اور حیدر صاحب کی خدمات ناقابل فراموش ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دامے درمے سکھنے ان کا ساتھ دیں اور قدم سے قدم ملاتے ہوئے ہم آگے کی طرف بڑھیں. آج غریبوں کو ہی نہیں جو بھی ضرورت مند ہیں جب وہ اس سینٹر پہ آتے ہیں تو نہ صرف ان کی مدد کی جاتی ہے بلکہ انہیں ڈاکٹروں کے ذریعہ صحیح مشورہ ملتا ہے اور انہیں تشفی بخش جو ہے علاج بھی کیا جاتا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ دوائیں بھی دی جاتی ہیں اور یہ دوائیں آپ کے تعاون کے ذریعہ. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اس طرح کے ادارے کو نہ صرف اپنا تعاون دیں بلکہ انہیں صحیح مشورے بھی دیں اور ان کے بڑھتے ہوئے قدم کے ساتھ قدم ملا کر آگے بڑھیں تاکہ ہمارے مسلم معاشرہ میں جو غربت ہے اس غربت سے لوگ اوپر اٹھیں اور ہم جو ہے ہر ایک کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہیں. ہمارے پاس آج بہت سارے لوگ نظر آ رہے ہیں. اس میں زیادہ تر متوسط گھرانے کے لوگ ہیں. اور آپ کا گھر کہاں ہوا؟ ڈاکٹر کاظمی کے پاس آپ رہتی ہیں. آپ کو ہیلتھ سینٹر کا خبر کب لگا کہ یہاں کوئی سینٹر ہے؟ پہلے سے معلوم نہیں تھا کہ یہاں کھلا ہوا ہے؟ نہیں تھا. تو معاملہ یہ ہے کہ آپ رہتی ہیں کریم گنج ڈاکٹر کاظمی صاحب کے کلینک کے پاس. تو آپ کو کس سے معلوم ہوا کہ صاحب جو ہے یہاں دوائیں ملتی معلوم ہوا؟ تو آپ یہاں تک آ گئیں. انشاءاللہ آپ کا علاج ٹھیک ہوگا. اور آپ کا نام کیا ہوا؟ زور سے بولیے. روزہ میں کہا ہم لوگ دیکھیں ہم روزہ میں رہ کے میری آواز بلند ہے الحمدللہ. ہاں تو جب برت نہیں ہے تو آواز تیز ہو جائے. کیا نام ہے؟ سیتا کماری آپ ہیں. چلیے بہت اچھا ہے. اور آپ بھی اسی محلے سے ہیں؟ جی ہاں. کس گلی سے؟ مل گلی مدرسہ گلی. تو آپ پہلے بھی یہاں آ چکی ہیں سینٹر میں؟ جی ہاں. دوا سے علاج ڈاکٹر سے خوش ہے؟ جی ہاں.
डॉक्टर मशवरे सही दे रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छे इलाज हो रही है। हाँ, तो इस तरीके से मरीज खुश हैं। और आप कहाँ से हैं? जी हम करीमगंज से हैं। करीमगंज से हैं। आपको इस हेल्थ सेंटर के बारे में कब मालूम हुआ कि यहाँ एक हेल्थ सेंटर कायम हुआ है? हमको 2-3 महीना पहले 2-3 महीना पहले। यानी कि आप पहली बार आई हैं या अभी दूसरी बार आई नहीं, हैं? बहुत बार आ चुकी। बहुत बार आ चुके हैं। तो आपका नाम क्या है? रोशन आरा। हैं? रोशन आरा। रोशन आरा आपका नाम है। आप ये बताइए कि पहली बार आई तो आपको कैसा महसूस हुआ है? जैसे दिखलाते हैं डॉक्टर के आते हैं वैसा महसूस हुआ, हम डॉक्टर से मिलना है। महसूस कैसा हुआ? अच्छा लगा? अच्छा लगा। दवाएं मिली? यहाँ के स्टाफ से आपको कोई नाराजगी? नहीं। यहाँ के स्टाफ जितने हैं उनके अच्छा बोलने का तरीका, उनका ये यानी कि झुंझलाहट नहीं नहीं, उनके अंदर है? नहीं। हेल्प करने का जो है सलाहियत उनके अंदर है? नहीं, और डॉक्टर आपको कैसे लगे? अच्छे लगे। दवा से कोई फायदा हुआ? जी फायदा होता है। चलिए, वेरी गुड। आप कहाँ से हैं? करीमगंज से। जी करीमगंज। करीमगंज। आप कब से आ रही हैं यहाँ? ये जब से खुला है यहाँ पे हम लोग आ रहे हैं रेगुलर। ये सेंटर जो है ये खुलने से कुछ फायदा नजर आता है? बहुत फायदा है, हम लोग को बहुत आराम हुआ है यहाँ। बहुत फायदा है। बहुत फायदा है। अगर ये सेंटर नहीं था पहले तो कितनी मुश्किलों का सामना करना बहुत पड़ता था? मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। हर एक चीज में बाहर जाना पड़ता था मोहल्ले से। हाँ बोलिए। मोहल्ले से बाहर जाना पड़ता था, वो टाइम भी लगता था। यहाँ पे आते हैं तुरंत हेल्प के लिए हर लोग मतलब हर वक्त खड़े रहते हैं। डॉक्टर साहब भी अच्छा ये ट्रीटमेंट बताइए करते हैं। कि पहली बार आपको कैसे मालूम हुआ कि यहाँ जो है कोई हेल्थ सेंटर खुला है? हम लोग देखे यहाँ पे खुल रहा है, बोर्ड वोर्ड लगा हुआ, बच्चे लोग खबर दिए कि हाँ यहाँ पे खुल। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ नामी गिरामी डॉक्टर हैं। गया शहर के जो सबसे बड़े डॉक्टर हैं एमडी के डॉक्टर शहाब साहब, उनकी खिदमत भी है। तो ये करीमगंज वालों के लिए बहुत खुशनसीबी की बात है, समझ गए? हाँ। तो मामला ये है कि आप फायदा उठाइए, दूसरों तक भी बात को पहुंचाइए। हम लोग हर जगह बात को पहुंचाते हैं, बहुत लोग को भेजते हैं। हाँ, दूसरे तक बात पहुंचाइए। आज ये आप यहाँ आई हैं, बैठिए यहाँ बैठिए। नहीं यहाँ बैठिए, बताइए आप बैठिए। आप पूछिए ना। नहीं सेंटर बैठिए आप यहाँ, अच्छा लगेगा ना। एक तहजीब है। आपका नाम? जी मेरा नाम शेफाली कुमारी है। शेफाली कुमारी। आप कहाँ की रहने वाली मैं हैं? करीमगंज की रहने वाली अरे वेरी गुड। और मैं भी बच्चा था तो करीमगंज ही में रहता था। उसके बाद मैं सेवानगर क्वार्टर में चला गया और रहता भी कहाँ था, ये बगल ये मकान में जो गिरी दीवार आप देख रही हैं, समझा नहीं? तो करीमगंज मोहल्ला जो है वो मोहब्बत का गहवारा रहा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कुम्हार गली, ये सारी चीज जो है वो बचपन का याद है। तो आप कहाँ रहती हैं, किस मैं गली? कुमार गली, तबली गली में रहती वाह वाह, कुम्हार गली का मैंने नाम भी लिया, समझा नहीं? तो कुम्हार गली में हम लोग का बचपन गुजरा है। उधर डॉक्टर साहब थे, उनके मकान में जाते आते थे। हाँ, तो मलिक जो थे। तो बहरहाल आपको ये सेंटर का मालूम कैसे हुआ? हूँ। जी मैं मोहल्ले में आती जाती थी तो मैंने देखा, तो मैं उधर से मिली, उनसे पूछी, उन्होंने बताया, तो फिर मैं दिखाने के लिए आने लगी। ठीक है। उसके बाद फिर जब आप यहाँ आई तो आपको कैसा लगा? जी सारी सुविधाएं अच्छी हैं। सारी सुविधा है? अच्छा, स्टाफ वगैरह नहीं सभी अच्छे हैं, सभी जो है बहुत ही अच्छे हैं। हेल्पफुल है? जी दूसरी बात ये कि जब आप यहाँ आई, डॉक्टरों से रब्ता किया, डॉक्टर से मिली, तो दवा उन्होंने दी, तो दवा के लिए पैसा वगैरह दिया है? हाँ नहीं कुछ भी नहीं सर, सारी सुविधाएं अच्छी है, ना कोई पैसा कुछ भी नहीं। बोलिए। दवा भी मिलती है, ये मैंने अभी यहाँ से दवा ली है। तो दवा में पैसा नहीं लेते हैं ये लोग? नहीं। एकदम फ्री है? वेरी गुड। दवा खाने के बाद फायदा नजर आया कि नहीं? फायदा है, तो अभी तो मैं आ रही हूँ, मैं 3 महीने से आ रही हूँ। यानी डॉक्टर से सेटिस्फाइड है? जी मैं सब हर चीज़ से मैं यहाँ सेटिस्फाइड हूँ। हाँ जी थैंक यू सर। हाँ।
आप इतनी बोल्ड हैं, इतनी स्मार्ट है, तो फिर इतना जल्दी थैंक यू नर्वसनेस क्यों आ गया? नहीं, मैं बोलती नहीं उतना नहीं, ज़्यादा। एक मिनट। जब इंसान तरक्की करता है, तरक्की की मनाजिल उसी वक्त तय करता है जब घर में भी कामयाब होता है, बाहर भी। नहीं, जब घर में मैं छोटी जब छोटी नर्वस नहीं नहीं, होता मैं है। वो बात नहीं है सर, मैं बच्चियों को छोड़ के घर पे आई कोई हूँ। बात नहीं है। आप ये बताइए कि आप दूसरों तक ये पैगाम नहीं, इधर देखिए, आप ये बताइए कि आप दूसरों तक ये बात को पहुंचा रही मैं हैं कि नहीं? तो अपने मोहल्ले में मैं जिनसे मिलती हूँ उन्हें भी बताती हूँ। अपने रिश्तेदारों को जी, जरूर। दूसरे जगहों पे, दूसरी मैं जगहों कहीं पर भी जैसे जाती फोन हूँ, आया तो भाई जैसे मेरे डेला पे मौसी रहती हैं। हाँ, जो तो भी है मैं कि वहाँ मेरे गई मोहल्ले में कि ऐसा मेरे है। मोहल्ला में हेल्थ सोसाइटी चलता है, आप कितने तकलीफ में हैं, आप वहाँ क्यों जाकर दूसरी दिखवाते हैं। चीज, अखलाकी तौर पर जी। आज हर आदमी परेशान है जी। और आज का माहौल बहुत दूसरा माहौल हो गया है। ऐसे माहौल में आपको किसी तरह की कोई परेशानी नजर आती है? यहाँ यहाँ जी नहीं सर, स्टाफ है, डॉक्टर है, किसी तरह की नहीं? चलिए ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। तो इस तरीके से मैंने देखा कि यहाँ न सिर्फ ये कि मरीज जो हैं वो आपके सेटिस्फाइड है, बल्कि मुतमईन हैं और दवाएं भी यहाँ से मिल जाती हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि हम किस तरीके से इस बढ़ते हुए कदम को आगे बढ़ाएं। तो उसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि हम दामे दरमे सुखने न सिर्फ इस इदारा की, इस मरकज़ की, इस सेंटर की मदद करें, बल्कि हर महल्ले में ये कोशिश करें कि हम हेल्थ सेंटर कायम करें और उस हेल्थ सेंटर के ज़रिए हम लोगों की न सिर्फ मदद करें, राब्ते में रहें और उनकी ज़रूरियात को फराहम करते रहें, उनकी ज़रूरियात को समझते रहें। क्या है कि आज का दौर जो है वो माशी बदहाली का दौर है और हर आदमी परेशान है। ऐसे परेशानी में अगर सहारा मिल जाता है तो ये बहुत बड़ी बात है। और दर्द के दरमा बनने की कोशिश कीजिए, दर्द को बांटिए और दर्द के लिए दवा बन जाइए। और ऐसी ही सोच के साथ ये मरकज़ जो है आज कायम व दायम है। और आप यहाँ कब से हैं? जब से ओपन हुआ तब से। और ये डिस्पेंसरी असिस्टेंट है, ये डिस्पेंसरी की देखभाल करते हैं और मरीजों को दवाएं मुफ्त फराहम की जाती है, उसकी देखभाल रेख इन्हीं के जिम्मा है। क्या नाम है आपका? ये एमडी नसीम रहमानी जी, एमडी नसीम रहमानी एमडी नसीम रहमानी साहब हैं और ये दवाओं के ये इंचार्ज हैं। अच्छा ये बताइए कि मरीज आते हैं तो मरीज आपसे कुछ झुंझलाहट या किसी तरह का सवाल या मरीज 4 मरते दवा के बारे में पूछते हैं तो आपको परेशानी तो नहीं होती है? कोई परेशानी हम आप बोलते हैं कि 50 बार आपको जरूरत है, 50 बार पूछिए, हम बताएंगे। और आप ये बताइए कि आप झुंझलाते नहीं न हैं? ये जाइए ऐसे तो नहीं न बोलते हैं? हैं? अभी तक तो आदमी अगर देख ही मरीज 10 मरतबा आपसे पूछे ए बाबू पूछ के गया और फिर बाहर जा कर के फिर आवे ए बाबू बता दे बेटवा के कैसे हो तो उसमें आपको परेशानी तो नहीं होती है? नहीं, इसमें नॉर्मल रहना ही पड़ता है, कितने भी बोलो। हंसते मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं ना। हाँ, तो ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है, यही होना भी चाहिए। और आप यहाँ क्या करते हैं? क्या नाम है आपका? मोहम्मद तारिक हुसैन। मोहम्मद तारिक हुसैन। तारिक हुसैन। आप रहने वाले कहाँ के हैं? हुसैंडा के। भूसंडा। यहाँ इस टेबल पर जो है ब्लड टेस्ट करते हैं। वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात है। तो ये ब्लड टेस्ट करके आप कहाँ भेजते हैं? हमारी लैब है मेपल पैराडाइज के पास। पूरा बताइए, लैब का नाम क्या है? मेपल पैथो लैब हाँ, पैराडाइज के पास है। जो डॉक्टर रिजवान बैठे हुए हैं अभी, उन्हीं का लैब है। तो यहाँ से हम कलेक्शन करके अपने लैब में लेके जाते हैं। 50% पे होता है। 50%। वेरी गुड। तो यहाँ से आपको, यहाँ आप अपनी खिदमत जो है वो मुफ्त दे रहे हैं या 50% ये इदारा आपको 50% आपको पेड करता है? जी, 50% यहाँ से आपको मिलता है? जी, हाँ, ये बात हुआ। 50%। हाँ, ठीक। अच्छा इधर क्या, ये हमारा सबसे इधर है।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आपकी तारीफ? मोहम्मद महफूज आलम। महफूज आलम। अल्लाह ताला हर इंसान को जो है महफूज भी और अमन व अमान और तंदुरुस्ती के साथ रखे। कहने का मतलब ये है कि आप कब से आ रहे हैं महफूज साहब? पहली बार आए। अच्छा पहली बार आए। तो किससे मालूम हुआ आपको कि यहाँ जो है? बगल में मकान है। कहाँ बगल में? गोल्डन लॉज। गोल्डन लॉज। अच्छा। कहे कि बचपन मेरा भी यहीं गुजरा है, ये मुन्ना खां के मकान में मैं रहा करता था। टाइफाइड हो गया था, डॉक्टर नाजिम के यहाँ दवा हुआ कराया, आज करीब 15-20 दिन हो गया, कोई फायदा नहीं हो रहा है, फीवर आ ही जाता है। हाँ। तो अब यहाँ आप आए हैं तो यहाँ अच्छे तालीम याफ्ता और मशहूर मारूफ गया के डॉक्टर की खिदमत यहाँ है। तो आप यहाँ आए हैं तो इंशाल्लाह ये दवा खाएंगे ना तो शाम से ही आपकी तबीयत बहाल हो जाएगी इंशाल्लाह। आपकी समझा? अब कल हमसे अगर आपकी मुलाकात हुई तो आप मुस्कुराते हुए नजर आइएगा, ये मेरी दुआ है। यानी आज शाम ही से आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ, समझ गए? और दवा जब भी खाइएगा तो अल्लाह शाफी अल्लाह काफ़ी कहा करके आप दवा लीजिएगा। अगर इस और बावजू सोया कीजिए, रात को जो सोइए वजू करके सोया कीजिए, आधा मर्ज आपका दूर हो जाएगा। सबसे बड़ा इलाज मैं बता रहा हूँ, ठीक है? इसलिए कि मैं मदीने मुनव्वरा में 30 साल रहा हूँ। हज करने जाते हैं लोग तो 10 दिन रहते हैं, अब मैं 30 साल रहा हूँ। तो जितने उलमाओं से मैंने सीखा है वो मैं बता रहा हूँ कि रात को सोते वक्त सब आदमी जितने सुन रहे हैं बावजू सोया कीजिए, समझ गए? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आप पीलर हैं, आपकी सोच और आपकी शख्सियत जो है वो चेहरे से यहाँ हो जाती है दास्तां में भी। तो मामला ये है कि चेहरा जो है ज़िंदगी का आईना होता है और अल्लाह सुब्हान ताला हर के चेहरे पर ऐसी रौनक नहीं अता करता है। तो आपकी खिदमत को अल्लाह ताला कबूल फरमा रहा है। ये चेहरा आपका आईना बन गया है। कहे कि इंसान स्टेज बाय स्टेज अपने में तब्दीलियाँ पैदा करता है, तो उन तब्दीलियों का जो है चेहरा गवाही देता है। इसीलिए किसी ने कहा है कि चेहरे से यहाँ हो जाती है दास्तां में। चेहरे आप कुछ नहीं बोलिएगा, नज़र वाले चेहरे देख करके आपके अंदर की कैफियत, आपके अंदर की सोच को वो महसूस कर लेंगे। तो आपका नाम क्या है? ज़ियाउल्लाह खालिद। ज़ियाउल्लाह खालिद। आप कहाँ के रहने वाले हैं? करीमगंज अखाड़ा गली। अखाड़ा गली के। और आप इस इदारे से, इस सेंटर से, इस सोसाइटी से आप जुड़े कैसे? ये सोसाइटी के बानियों में से अब बोलिए जुड़े कैसे, कैसे फिक्र आई? सोसाइटी को हम लोगों ने जोड़ा है। अच्छा। जुड़े नहीं बल्कि जोड़ा, बानी है, फाउंडर है। हाँ। तो आपको ये ख्याल कैसे आया? मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि ख्याल कैसे आया? यहाँ तो साहिब सरवत बहुत सारे लोग हैं, तालीम याफ्ता बहुत सारे लोग हैं, आपको ख्याल क्यों आया? ख्याल ये समाज में ज़रूरत महसूस किया कि इस तरह की ज़रूरत समाज में है, जिसकी वजह से इस तरह का सोच पैदा हुआ। आज की सियासी समाजी गिरावटों को देखते हुए माशरे में आपको ये एहसास हुआ कि हम ऐसे अदारे कायम करें जिसमें के ज़रूरतमंदों की हम मदद कर सकें। अब आप क्या चाहते हैं? अब चाहते हैं कि फ़रोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग हो। फ़रोग के लिए क्या करना होगा? फ़रोग के लिए है सबसे पहला तो यह है कि फंड हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर इसको और ज़्यादा फ़रोग दिया जाएगा। फ़रोग देने के लिए फंड का इकट्ठा होना ज़रूरी है और उसके लिए राब्ते का होना ज़रूरी है। तो आप राब्ते कर रहे हैं लोगों से? बिल्कुल किस तरह कर रहे हैं? वो पंपलेट के शक्ल में, लेटर के शक्ल में और यूट्यूब पे वीडियो डाल के इस तरीके से राब्ता किया जा रहा है। आपको सबसे पहले तो ये कि यहाँ के जो भी जी हैसियत लोग हैं वो दे ना दे, मदद करें ना करें, लेकिन 15 दिनों पर आप जाके उनको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू, उसमें शर्माना नहीं है।
ये पैगाम मोहब्बत है, सुनाना है और चले आना है। अल्लाह हिदायत देता है, जिसको भी देता है अल्लाह हिदायत देता है, लेकिन अपना काम है कि हम पैगाम मोहब्बत ज़रूर दें। जहाँ जाए, पटना जाए, दिल्ली जाए, कहीं भी जाए तो तज़किरा ज़रूर करें। और खलीज ममालिक से, बाहर मुल्कों से, अबॉर्ड से जो बच्चे आते हैं हमारे मोहल्ले के या हमारे शहर के, उनसे जाके मिलें, उनसे अपने अगराज़ व मकासिद को बयान करें और उन तक अपना पैगाम पहुंचाएं ताकि आपके फंड में इजाफा हो सके। तरीका ये है, ये तरीका अपनाइए। जैसे अभी मैंने बताया कि फलां साहब आए हुए हैं, मैं यहाँ 8 साल से हूँ। मैं इसी मुन्ना खां के मकान में मैं रहता था बचपन में, फिर मैं सेवानगर चला गया, फिर मैं मदीना मनोवरा चला गया, 30 साल के बाद मैं आया, समझने गए। तो कहने का मतलब ये सब जो है इन लोगों की खिदमत देख के दिल खुश हो गया कि अल्लाह सुब्हान ताला किस तरीके से काम लेता है। तो अब मामला यह है कि हम लोग मिलजुल करके इसको आगे बढ़ाएं, उसके लिए कोशिश करनी होगी। जैसे कि गुलाम समदानी साहब, गालिब कॉलेज के प्रिंसिपल, उन्होंने बेला में अपने मकान को वक्फ कर दिया और सिंदानी में, और मदरसा कायम किया बीवी के नाम से, बीवी नूर जहां ट्रस्ट के नाम से। आज मैं एक बच्चे से जा रहा हूं, आज जो है 100 बच्चे हैं, 10 हाफिज हो गए। ये जज्बा होना चाहिए, ये जज्बा होना चाहिए। तो जितना आप करीब होइएगा, नफ्सियाती तौर पर उनके दिलों पर राज कीजिएगा, तो आपको मोटा रकम मिलेगा। सोचिए, लाख लाख रुपए दे रहे हैं वहाँ लोग उस मदरसे में, कहे कि इनपुट देख रहे हैं कि 1 साल के अंदर में 10 बच्चे हाफिज हो गए और एक बच्चे से शुरू हुआ था 100 बच्चे आज हैं। तो हर आदमी दे रहा है कि सही जगह पर दे रहे हैं। मामला यह है कि हमको भी यहाँ लाख लाख रुपया डोनेशन देने वाले लोग मिल जाए, तो हम जो है नहीं है। अब तो मामला ये है कि हम सब, मेरी जिम्मेदारी भी है, आपकी नहीं, मेरी जिम्मेदारी भी है कि हम भी दामे दर में सुखने उनकी मदद करें, समझने गए। तो ये चीज़ है। चलिए कदम बढ़ाइए, टीम अच्छी है और टीम में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। मेरा कहना ये है, इत्तेहाद, कमरे में बैठ के मशवरा कीजिए और सब मिलजुल के रहिए। नहीं तो इदारे जो है ना कामयाब नहीं होते हैं जब मुत्तफिक नहीं होते हैं। इदारे तो बहुत बनते हैं, तो उसका ख्याल जरूर रखिएगा, कहे कि आप बानी हैं, आपको ज़्यादा तकलीफ होगी, समझने गए, तो उसका ख्याल रखिएगा। और अच्छा, ये हैं जावेद साहब, ये जावेद खान, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हैं जावेद साहब, और जावेद साहब जो हैं स्टेट बैंक में मैनेजर के ओहदे पर फाइज थे और अब जो है अपनी सर्विस से सबकदोश हो चुके हैं। जावेद खान की बहुत सारी खिदमत रही हैं। पढ़ने के ज़माने से इन्होंने हर चीज़ों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, और ये सब हमारे कलीग ही नहीं रहे, हमारे भाई की तरह हैं। और जावेद खान के खानवादे से हमारा पुराना ताल्लुक़ रहा है, इसलिए कि इनके वालिद साहब भी बहुत शरीफुन्नफ्स इंसान थे और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और उनके बच्चों में भी ये जज्बा रहा, और जज्बा जब होता है तो चीज़ें आपको जो है हेल्थ सेंटर सोसाइटी की तरह सामने नज़र आती हैं। ये हेल्थ सोसाइटी जो है करीमगंज मोहल्ला में कायम है। यहाँ मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ न सिर्फ ये कि ज़रूरतमंदों की मदद की जाती है, बल्कि यहाँ अमीर और गरीब और रिटायर और साहिब सरवत को नहीं देखा जाता है। जो इस दरवाज़े पे आ गया वो फैज़याब होके जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने मरीज़ों से बात की, वो भी सेटिस्फाइड हैं, और यहाँ के स्टाफ भी जो है मदद करते हैं और झुंझलाते नहीं हैं। मामला ये है कि जावेद खान साहब और हैदर साहब, ये 2 शख्सियत है जिनकी कोशिशें जो है हमेशा जारी और सारी हैं। तो मैं जावेद खान से ये पूछना चाहता हूँ कि जावेद खान साहब रिटायरमेंट के बाद तो इंसान जो है
ریلیکس کرتا ہے. آپ کو یہ خیال کیسے آیا؟ ایکچولی ہم لوگ بہت پہلے سے ہی سوشل رہے ہیں، لوگوں سے ملنا جلنا، لوگوں کے مدد کرنا. تو ہم لوگوں کا ایک رائے ہوا کہ محلے میں کچھ ایسا کیا جائے کہ غریب لوگ، نادار لوگ، ضرورت مند لوگوں کو کچھ بھلا ہو. تو 2019 میں یہ ہیلتھ سوسائٹی کو ہم لوگوں نے بنایا. اس میں بہت چھوٹے موٹے کام ہوتے تھے. کچھ لوگوں کو وظیفہ دیا تھا 4 مہینے، کچھ چھوٹے موٹے بزنس مین کو 5,000 10,000 مدد کی شکل میں دیا تھا. اسی بیچ میں کرونا کا وقت آ گیا، تو اس میں ہم لوگوں نے بہت بڑھ چڑھ کر لوگوں کے تعاون سے بہت بڑھ چڑھ کر کام کیا، اور 130 گھروں میں کم سے کم 7-8 ہفتہ ہم لوگ فری میں سارا کٹ جو ہے کھانے سے لے کے سارے سامان کا دیا. یعنی اس سوسائٹی کے ذریعہ کرونا کے وقت بھی جو ہے لوگوں تک آپ نے مدد پہنچائی. ان ایڈیشن ہم لوگ اس سوسائٹی نے ایک اہم کارنامہ انجام دیا. آکسیجن کا بھی ہم لوگ انتظام رکھتے تھے، وہ بھی لوگوں کو ہم نے سپلائی دیا. جاڑے کے دنوں میں کمبل وغیرہ تقسیم کیے. اسی بیچ میں لوگوں کا ڈیمانڈ آنے لگا ہم لوگوں سے کہ ہم کو پیسہ چاہیے، غریب لوگ پیسہ دیجیے علاج کرانا ہے. تو علاج کا کوئی لمٹ نہیں، اور ہم لوگ کا فنڈ جو ہے بہت محدود تھا. تو اس لیے ہم لوگوں نے ان دا مین ٹائم ہم لوگوں نے اس ادارے کو رجسٹرڈ بھی کروا دیا. یہ اب رجسٹرڈ NGO ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے اور خوشی کی بات یہ ہے جو آپ نے یہ بتایا کہ یہ ادارہ جو ہے ہیلتھ سوسائٹی وہ جو ہے گورنمنٹ سے رجسٹرڈ ہو چکا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ دامے در میں سوکھنے لوگوں کی امداد کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس کو وسعت دے سکیں، اس میں ہم اور بیڈ لگا سکیں تاکہ ہم مریضوں کی خدمات کو اچھی طرح انجام دے سکیں اور دوائیں بھی خرید کے لا سکیں. آپ نے دیکھا ہوگا، آپ انٹرویو لیے پیشنٹ سے، وہ ایکچولی یہاں پر کسی بھید بھاؤ سے نہیں ہوتا ہے علاج، اور جو بھی لوگ آئے قومی یکجہتی. میں نے یہ دیکھا کہ یہ ادارہ جو ہے قومی یکجہتی کا علم بردار ہے. ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، امیر و غریب جو بھی ہیں وہ اس ادارے میں آئیں گے تو فیضیاب ہو کے جائیں گے. یہاں پر یہ میں نے دیکھا. یہاں پر مریض جو ہے ابھی موسٹلی کریم گنج کے حصے کے رمضان چل رہا ہے، لیکن یہاں پر ہسپورہ سے، رفیع گنج سے، شرگھاٹی سے، آس پاس نواحی علاقوں سے بھی، گاؤں سے بھی لوگ آ رہے ہیں. ہاں، ویری گڈ. تو بس اس میں آپ لوگوں کو تعاون کی ضرورت ہے. اس میں جو ہے آپ اپیل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں؟ لوگوں سے اپیل کرنا چاہیں گے کہ چونکہ بہت ہی نیک اور فلاحی کام ہو رہا ہے آپ کے علاقے میں، آپ کے محلے میں، آپ کے شہر میں، آپ لوگ بڑھ چڑھ کر اس میں تعاون کریں تاکہ ہم لوگ اور بھی آگے کام کو بڑھا سکیں. جاوید خان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ملک اور غیر ملک اور خلیجی ممالک میں رہنے والے اور اس گیا شہر یا بہار کے رہنے والوں سے ان کی یہ گزارش ہے کہ وہ نہ صرف دامے در میں سکھنے ان کی مدد کریں بلکہ وہ آئیں اور ہیلتھ سینٹر میں آ کے اپنی آنکھوں سے دیکھیں، معائنہ کریں اور اپنے نیک مشوروں سے بھی نوازیں تاکہ یہ ادارہ جو ہے دن دگنی رات چوگنی ترقی کے منازل طے کرتا رہے اور آگے کی طرف یہ بڑھتا رہے. کیونکہ آج کی صورتحال میں ہمارا پرسرحال کوئی نہیں ہے. ایسی صورتحال میں ہم اگر اپنے ہر محلے میں اس طرح کا ہیلتھ سوسائٹی سینٹر قائم کر لیتے ہیں تو ہر ایک کو فائدہ ہوگا اور اس میں جو ہے مریضوں کو بھی راحت ہوگی، انہیں ذہنی سکون ملے گا اور ڈاکٹروں کی خدمات بھی مل رہی ہیں جو اپنی خدمات دیتے ہیں. اس ہیلتھ سوسائٹی سینٹر میں ڈاکٹر MD شہاب الدین، ڈاکٹر شہاب الدین صاحب کا نام ہے. یہ MBBS ہے، MD ہیں. یہ سیٹرڈے کے دن بیٹھتے ہیں. ڈاکٹر شہاب الدین صاحب ایک نیک انسان ہیں اور پڑھنے کے زمانے سے جب ان کی پہلی جوائننگ ہوئی تھی
उस ज़माने से ये लोगों की मदद करना इनका सेवा है, और ये आज तक लोगों की मदद कर रहे हैं, और इनके हाथ में अल्लाह ने शिफा इनायत किया है। डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब गरीब परवर भी हैं और एक अच्छे डॉक्टर हैं। फिर डॉक्टर रिजवान ज़फ़र साहब हैं। डॉक्टर रिजवान ज़फ़र साहब भी मुखलिस हैं और अपनी खिदमत को बहसन खूबी अंजाम देते हैं, और दुनिया के साथ साथ इन्हें भी दीन की फिक्र है। इसी तरह से इस सेंटर पे डॉक्टर अफजाल अहमद कई दिनों तक, यानी डॉक्टर अफजाल साहब तकरीबन हर दिन तशरीफ़ यहाँ लाते हैं। फिर डॉक्टर शरीफ आलम साहब हैं, फिर आयशा परवीन साहब हैं। तो इस तरीके से यहाँ नामी गिरामी और मशहूर व मारूफ डॉक्टर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि अच्छे काबिल और भरोसेमंद डॉक्टर की खिदमत भी इस हेल्थ सोसाइटी को मिल रही है। ये बहुत खुशी की बात है, और इस तरीके से सुबह ही से काफ़ी भीड़ लग जाती है, और यहाँ जो है 12 बजे तक लोगों का इज़्दिहाम रहता है। और मामला ये है कि छोटी सी जगह है, इसमें वुसअत पैदा हो। वुसअत पैदा उस वक्त हो सकती है जब हम आप सब बढ़कर इनके जज्बे को सलाम करें और इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलें, और ये दुआ करें कि ये सेंटर जो है एक बड़े कैंपस का रुख अख्तियार कर ले, एक हॉस्पिटल का रुख अख्तियार कर ले, और ये गया शहर के लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो इसमें दवाएं भी ख़रीदने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। तो हमारे जितने भी दोस्त हैं, चाहे वो सऊदी में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो जर्मन में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे इंडोनेशिया में हो, हमारे बिहार के जितने भी दोस्त हैं या बिहार से बाहर के भी जो लोग हैं जो अपनी खिदमत अंजाम देना चाहते हैं, वो इस इदारे की मदद ज़रूर करें। इस तरीके से मैंने जो सारी चीज़ें देखी वो चीज़ें, और इस तरीके से मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, और देखने के बाद मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि ये अदारा एक फौल अदारा है, और दो छोटे से बंदे ये अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। जावेद खान साहब और हैदर साहब दो ऐसी शख्सियतें हैं जिनके साथ बचपन गुजरा है, और आज जब मैं देखता हूँ तो मुझे खुशी होती है। आज के हाल में इस तरह के इदारे की हर महल्ले में जरूरत है, हर महल्ले में इस तरह के इदारे खुलने चाहिए। मैं डॉक्टर एहसान ताऊरी, ये सारी चीज़ें मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। दवाएँ मुफ्त मिल रही हैं, काबिल और मशहूर सर्जन और मशहूर डॉक्टरों की खिदमत इस इदारे को मिल रही हैं। इससे बड़ी बात कोई नहीं। मैंने मरीजों से बात की, मरीज भी सेटिस्फाइड हैं, वो मुतमईन हैं, और एक महल्ले से दूसरे महल्ले में जाने में 200 रुपये रिक्शे के लगते वो उनके बच रहे हैं, और फ्री दवाएँ भी मिल रही हैं और दुआएं भी मिल रही हैं। दुआएं करती हैं ना, दुआ करती हैं आप लोग, हाँ दुआ करती हैं कि ये इदारा और फले फूले। तो आखिर में मैं बस ये कहूँगा कि आप सब अपने अपने महल्लों में हेल्थ सेंटर कायम करें। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि आज के दौर में हम सब जो है परेशानी और बुरे दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में अगर हम किसी की मदद करते हैं, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आते हैं, तो ये सबसे बड़ी इबादत है, और इस इबादत से गाफिल ना रहिए। कहा गया है कि सब ठाक पड़ा रह जाएगा, जब रात चलेगा बन जाना, तो दुनिया ही में छोड़ के जाना है। तो आपके पास अगर थोड़ी सी रकम भी है, उस रकम में से
इस तरह के इदारे जहाँ भी आपको नजर आए उसकी मदद कीजिए कि ये वक्त सोने का नहीं है, ये वक्त जागने का है, ये वक्त जो है कदम से कदम मिलाने का है, ये वक्त हाथ से हाथ मिलाकर एक ताकत बन जाने का है। तो आइए हम हेल्थ सोसाइटी करीमगंज की मदद करें और हमारे दोस्त अहबाब जो अमेरिका में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, जर्मन में हैं, इंडोनेशिया में हैं, मक्का और मदीना में है, दम्माम में है, रियाद में है, यानी सऊदी के किसी इलाके में है, तो बहरीन में है, तो वो सारे दोस्त आप जब भी छुट्टी में आए कि इस हेल्थ सेंटर पे आए और आप अपना ताउन पेश करें ताकि ये छोटा सा 2 रूम का ये जो हेल्थ सेंटर है वो आने वाले वक्तों में एक बड़े हल्के में आपको ये हेल्थ सेंटर नज़र आए, बड़ी इमारत इसकी नज़र आए, और ये सब आपके ताउन से होगा। और आपके ताउन के लिए मैं शुक्रगुजार रहूँगा और मैं अपील करता हूँ एक बार फिर कि जब आप अपने मुल्क वापस लौटें, आप गया शहर में मौजूद हैं तो भी आप किसी भी मोहल्ले के रहने वाले हैं, आप इस अदारे में आए, आके विजिट करें और साहिब सरवत हैं तो आप इस अदारे की मदद करें। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ और हेल्थ सेंटर के एरकान को मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।